नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को क्या धमकी दी है, क्या चेतावनी दी है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। यूरोप में उसका क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एंटोनियो कोस्टा है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट। अगर आप लोगों को याद हो, 26 जनवरी के दिन मौके पर जब उर्सुला वॉन आई थी यूरोपियन यूनियन की, तो उनके साथ ये जनाब भी थे। तो पहले इनको सुनते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। There is only one winner in this war, Russia. It steadily undermines Ukraine's position by flouting international law. It gains new resources to finance its war against Ukraine as energy prices rise. It profits from the diversion of military capabilities that could otherwise have been sent to support Ukraine. And it benefits from the reduced attention to the Ukrainian front as the conflict in the Middle East takes center stage. We know the new reality, a reality in which Russia violates peace, China disrupts trade, and the United States challenges the international rules-based order. In this new reality, what should be the mission of the European Union? First, we must defend the rules-based international order. We must uphold the principles enshrined in the United Nations Charter as outlined in our treaties. Violations of international law must not be accepted, whether in Ukraine, Greenland, Latin America, Africa, in Gaza, or in the Middle East. The European Union calls on all parties to exercise maximum restraint and return to the negotiating table. The European Union stands with the long-suffering people of Iran. We support their right to live in peace and determine their own future. We believe that human rights and freedoms must be fully respected. But freedom and human rights cannot be achieved through bombs. Only international law upholds them. International law is crucial. We must. तो जैसे कि आपने सुना, पहली बात तो इन्होंने अपने स्पीच में, ये जो 2 मिनट का स्पीच था, चाइना, रशिया और इवन यूएसए को भी लपेटे में ले लिया। और कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है। उन्होंने कहा कि रशिया, चाइना तो जो करता है वो करता ही है, बट यूएसए भी रिसेंटली जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और उसके चलते जो भी अनरेस्ट अक्रॉस इन्होंने जैसे गिनाया कि लैटिन अमेरिका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, और बाकी कंट्रीज़ भी है, जैसे कि गाज़ा में जो भी पिछले 3 साल से हो रहा है। तो उस सब के लिए उन्होंने कहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो आउटकम इस स्पीच से निकल के आया, इन्होंने बोला कि सबसे बड़ा विनर मिडल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है, लाइक इजराइल और यूएसए विथ ईरान, जो ये पिछले 12 दिन से जंग चल रही है, उसमें क्लियर विनर इज़ रशिया। क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल का जो सप्लाई या जो सैंक्शंस यूरोप ने यूएसए के कहने पे, या यूएसए ने यूरोप के कहने पे जो लगाए थे, वो अब काम नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिसरप्ट करता है, उस केस में अगर ऑयल की आपूर्ति को बैलेंस रखना है, कीमतों को बढ़ने नहीं देना है, तो रशिया से ख़रीदना होगा। ये हो गया एक। अच्छा, इसमें और एक बात है, ये रिएक्शन तब आया है जिससे एक दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच में ये बोला कि उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट है उनको एक ऑर्डर दिया है कि रिव्यू करेंगे कि ऑयल के सप्लाई को अगर हम डिसरप्ट कर मतलब हम अगर ऑयल के सप्लाई को रोक सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ऐसे देशों को जो हमारे साथ खड़े हैं
जो मुश्किल समय में भी हमारे साथ खड़े थे और जो आज भी खड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो भी एक बार सुने। EU countries from 25th of April plan to impose additional restrictions on Russian LNG and energy, all the way to imposing a complete ban on such supplies in 2028. In this regard, I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. And those volumes will be shifted to other markets that are more interesting and promising to us. Right now, the market situation is developing in such a way that if we make this transition right now, if we shift to markets that really need increased supplies, we will get a stable foothold there in markets where there is reliable demand and where there are reliable long-term relations. The states that are तो रिलायबल लॉन्ग टर्म रिलेशंस और रिलायबल सप्लाई, मतलब जो लोग ऑल इन ऑल ये कहना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन की, जो हमारे साथ पहले भी खड़े थे आज भी खड़े हैं, हमारे लिए उनको प्रायोरिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन यूरोप, जो कि इस ये सब दुनिया में चल रहा है। उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन वॉज प्लानिंग, उनका प्लान चल रहा था कि अप्रैल में यूरोप रशिया के एलएनजी पे हम सैंक्शंस लगाए। तो पुतिन ने साफ साफ ये कहा कि इससे पहले कि कोई हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद करे, हम खुद ही उनका यूरोप के लिए जो भी सप्लाईज है वो हम बंद करेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे पहले जो हमने एक क्लिप देखी थी एंटोनियो कोस्टा की, कि ये वो स्टेटमेंट पुतिन के बाद उन्होंने दिया था कि क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में, और ये सब के चलते सबसे ज़्यादा कोई पीस रहा है तो वो है यूरोप। और आगे भी सबसे ज़्यादा किसका लॉस होगा, ये जंग अगर खींचती है, ख़त्म नहीं होता है ये जंग अगर आने वाले एक हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो दुनिया का जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी तो डैमेज हो गई। और सबसे पहले अगर कोई मतलब कोलैप्स करेगा तो वो होगा यूरोप, यूरोपियन यूनियन में आने वाले सारे कंट्रीज जो छोटे छोटे वो सारे डिसरप्ट होंगे। तो बस ये है, अब ये जंग चल रही है, जब तक जो भी नई डेवलपमेंट्स आएंगी मैं वो सारे आपके पास लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप अगर शुरू से अब तक इसको सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।